Hello everyone. I welcome you all to the Buzzword by Shriram IS Study Center, where we discuss about relevant topics associated to the issues in news. Recently, a research paper was published which says that the Arctic is warming up at a rate 4 times higher than the rest of the world. So, the question is, why is this happening? And how Arctic amplification is responsible for this, and what are other consequences of Arctic amplification. So first of all, what is the news? Recently, Finnish Meteorological Institute researchers published a study in Communications, Earth and Environment Journal concluding that the Arctic is heating 4 times faster than the rest of the planet. As you can see in the given map, the Arctic region, which is supposed to remain cold all around the year, is marked with a red shade of color which represents higher temperature than usual. This red shade of color is particularly darker in places around the Laptev Sea and the Barents Sea in north of Russia and Norway. This is a matter of grave concern, and as far as I can remember, previous research, that of 2020 and 21. In 2020, similar trends were reported when it was said that the Arctic is heating 2 times faster than the rest of the world, and in 2021 it was said that the Arctic is warming up at rate 3 times higher than the rest of the world. Now the pace has further increased to 4 times. All the recent researchers hold the phenomena of Arctic amplification responsible for the rise in the rate of warming in Arctic region. Now the question is, what is Arctic amplification? What is Arctic amplification? In simple words, Arctic amplification is nothing but intensification of a phenomena which is an outcome of climate change due to that phenomena or due to some other phenomena associated to climate change only. हिंदी में अगर बात करें तो इसका मतलब क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन की वजह से कोई समस्या पैदा हुई हो, उस समस्या की वजह से वो समस्या और गहरा जाए, या फिर उस समस्या की वजह से एक और नई समस्या का जन्म हो जाए, और अगर एक आर्कटिक रीजन में होता है तो उसे हम आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन कहते हैं. अब इसे हम थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में भी देख लेते हैं. आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, इट रेफर्स टू द लूप ऑफ फीडबैक. लूप ऑफ फीडबैक, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. फीडबैक मैकेनिज्म. किसी भी इकोसिस्टम में बायोलॉजिकल इंटरफेरेंस का किस तरीके से असर पड़ता है, इकोसिस्टम उस इंटरफेरेंस के प्रति कैसा रिस्पॉन्स देता है, उसे हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं. एंड आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन इज अ लूप ऑफ दैट फीडबैक मैकेनिज्म. इट इज अ चेन ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म्स in response to what? In response to human induced climate change. ह्यूमन इंड्यूस क्लाइमेट चेंज के प्रति आर्कटिक इकोसिस्टम कैसा रिस्पॉन्स करता है, उसके लूप को हम आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन कहते हैं, जिसकी वजह से वो जो ह्यूमन इंड्यूस क्लाइमेट चेंज है वो और ज़्यादा तेज़ हो जाए, और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाए, और ज़्यादा उसके आउटकम्स और ज़्यादा ग्रेव हो जाए. अब उसे हम आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन कहते हैं अगर वो चीज़ आर्कटिक्स में हो रही है तो. दूसरे शब्दों में, वन इम्प्लीकेशन ऑफ द ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज ईदर रीइंफोर्सेस and intensifies the implication or gives birth to a new climate associated problem. This is called Arctic amplification if that thing happens in the Arctic region. इसके outcomes क्या होते हैं? Well, most discernible outcomes are like rate of increase in ice sheet melting, warming of ocean water, and third, rise in sea level. These are 3 most discernible outcomes of Arctic amplification, and these 3 outcomes give rise to other implications of climate change. The phenomena is a culmination of several feedback loops, as I had said earlier, that there is a loop of feedback. कई तरह के feedback के loops मिलके Arctic amplification को जन्म देते हैं, जिसकी वजह से आर्कटिक्स में वार्मिंग और दूसरी जो क्लाइमेट एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाते हैं. किन तरह के लूप्स? देयर आर मेजरली 3 टाइप्स ऑफ फीडबैक लूप्स. 1 आइस एल्बीडो फीडबैक लूप, सेकेंड इज पर्माफ्रॉस्ट फीडबैक लूप, एंड थर्ड इज ओशन ट्रांसपोर्ट फीडबैक लूप.
let's talk about ice albedo feedback loop. This is the simplest one. इसके लिए हमें पहले जानना होगा what do we mean by albedo. Albedo refers to reflectivity of any surface. It refers to the fraction of light that the surface reflects. Higher the albedo, more energy is reflected. Simple. जितना ज़्यादा सरफेस की रिफ्लेक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा वो एनर्जी रिफ्लेक्ट कर देगी वापस. वहीं if lower the albedo, less energy is reflected. But the albedo of any surface depends on the color of the surface. Darker the surface of the color of the surface, lower the albedo, whereas lighter the color of the surface, higher the albedo. जितना ज़्यादा albedo हाई होगा उतना ज़्यादा एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाएगी. अगर कम है तो और ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब होगी. एंड अब आते हैं कि आखिर इस अल्बीडो वाली चीज़ का आइस मेल्टिंग और ये आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन से क्या लेना देना है, इसका संबंध इससे कैसे. सो एज वी नो आइस शीट्स आर जनरली वाइट इन कलर, नॉट जनरली बट दे आर इंडीड वाइट इन कलर. सो white surfaces reflect more energy, more light as compared to darker surfaces. True. अब जैसे जैसे टेम्परेचर प्लैनेट का बढ़ेगा ज़्यादा आइस घटते जाएगी. ठीक है, इसे ग्राफ के थ्रू डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं. यूजुअली आइस जो भी इंसोलेशन सूरज से आता है उसका 90% ऑफ एनर्जी वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देती है. 90% ऑफ इंसोलेशन वापस रिफ्लेक्ट कर देती है जो भी उस तक पहुंचता है. सिर्फ 10% ही वो एनर्जी ऑब्जॉर्व करती है. सो इस वजह से एक टेम्परेचर बैलेंस प्लैनेट पे बना रहता है. लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर प्लैनेट का बढ़ेगा उतनी ज़्यादा आइस मेल्ट होगी. आइस जितनी ज़्यादा मेल्ट होगी वाटर का सरफेस बढ़ता जाएगा. एंड वाटर बिकॉज ऑफ हैविंग डार्कर सरफेस एज कम्पेयर टू आइस, उसकी वजह से वाटर और ज़्यादा एनर्जी हीट एनर्जी ऑब्जॉर्व करने वाला सरफेस भी और ज़्यादा बढ़ते जाएगा. एंड here this is also important to know that water absorbs 94% of heat energy coming from sun and reflects only 6%. So in that situation it will have devastating implications on sea ice melting because it will increase the pace of melting. जितने टेम्परेचर बढ़ रहा है प्लैनेट का, आइस मेल्टिंग बढ़ रही है, वाटर का सरफेस बढ़ रहा है. वाटर की सरफेस बढ़ने की वजह से हीट एनर्जी ऑब्जॉर्व करने वाला सरफेस भी बढ़ रहा है. उस एनर्जी की वजह से, उस हीटिंग की वजह से और ज़्यादा बर्फ़ पिघल रही है, और ज़्यादा वाटर सरफेस बढ़ रहा है, और ज़्यादा हीटिंग हो रही है, और ज़्यादा बर्फ़ पिघल रही है. दिस इज़ हाउ दिस लूप वर्क्स. दिस इज़ कॉल्ड आइस अल्बीडो फीडबैक लूप. सेकेंडली एक और चीज़ है जो इस पीपीटी में मैंने नोट नहीं की, बट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट जितना भी हमारे पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं फ्रॉम आवर फैक्ट्रीज और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल और एनी अदर एक्टिविटी, वो सारे के सारे पोल्यूटेंट्स दे डू नॉट रिमेन स्टॉल्ड एट एनी वन प्लेस. रादर दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन मैकेनिज्म. राइट. अब एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन मैकेनिज्म की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पोल्यूटेंट्स मूव होंगे. मूव होने के बाद कहीं डिपॉजिट भी होते हैं. कहाँ पे होते हैं? आर्कटिक रीजन में, और कभी कभी और काफ़ी हद तक अंटार्कटिका में. अब वहाँ वो अगर वाइट सरफेस के ऊपर ब्लैक पर्कुलेट मैटर और ब्राउन पर्कुलेट मैटर और दूसरे अलग अलग पर्कुलेट मैटर जमा हो जाएंगे तो आइस गंदी हो जाएगी, वो काले रंग की हो जाएगी सफ़ेद की जगह. इसकी वजह से वो भी हीट अब्जॉर्ब करने वाला सोर्स बन जाएगा. वो भी हीट अब्जॉर्ब करने लगेगी, सन से आने वाली एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगी. इसकी वजह से और ज़्यादा आइस मेल्ट होगी. जितनी ज़्यादा आइस मेल्ट, फिर से वाटर सरफेस बढ़ेगा और ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब होगी और आइस मेल्ट होगी. दिस इज़ हाउ दिस फीडबैक लूप वर्क्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट permafrost feedback loop. So for understanding permafrost feedback loop, it is important to understand what is permafrost. Permafrost is any ground which remains frozen for at least 2 years straight. These permanently frozen grounds are most common in regions with high mountains and near North and South Pole,
इट कंसिस्ट ऑफ सॉइल, ग्रेवल, सैंड एंड यूजुअली बाउंड टुगेदर बाय आइस। और हम यहाँ आर्कटिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये आर्कटिक के कॉन्टेक्स्ट में यूजुअली आपको टुंड्रा रीजन में मिलते हैं, यानी यूरेशियन पार्ट में आपको, रशिया के नॉर्थ में, नॉर्थ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट में, वहाँ पे आपको ये मिलेंगे। और ये एक और चीज़, ये सब सॉइल में पाए जाते हैं या फिर होराइजन ई में पाए जाएंगे। होराइजन ए और होराइजन ई, इन दो होराइजन में काफ़ी ज़्यादा इन्हीं होराइजन में होते हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर में या तो ह्यूमंस रहेगा या फिर दूसरा कोई कंटेंट रहेगा, जैसे लीचेंस रहते हैं, या फिर ग्रास आपको मिल जाएगी अगर इन एरियाज में, अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस जैसे कि ग्रास हो सके। अब होता यह है कि पर्माफ्रॉस्ट के अंदर सैंड भी है, ग्रेवल्स भी हैं, सॉइल भी है। साथ ही साथ जहाँ सॉइल है वहाँ पे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे फ्रोजन रहते हैं पर्माफ्रॉस्ट में, एंड एज वेल एज दे रिमेन डोर्मेंट देयर, दे डू नॉट एक्ट, दे जस्ट रिमेन फ्रोजन देयर। बट जैसे जैसे पर्माफ्रॉस्ट पिघली, अगर पर्माफ्रॉस्ट पिघली वो वापस एक्टिव भी हो जाते हैं। ठीक, तो इसका पर्माफ्रॉस्ट मेल्टिंग का असर क्या होता है? पर्माफ्रॉस्ट क्या है भाई? पर्माफ्रॉस्ट तो हमने समझ लिया क्या है, लेकिन इसका असर क्या है? जैसे जैसे टेम्परेचर आर्कटिक रीजन में बढ़ेगा वैसे वैसे पर्माफ्रॉस्ट भी सॉफ्ट होगी और पिघलनी स्टार्ट होगी। ठीक, हियर इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट पर्माफ्रॉस्ट अभी भी यूजुअली भी मेल्ट होती है, लेकिन पर्माफ्रॉस्ट मेल्टिंग हर 2 या 3 साल के इंटरवल पे होती है। यूजुअल मेल्टिंग जो होती है 2 या 3 साल या उससे भी ज़्यादा के इंटरवल पे होती है। कुछ टाइम, बहुत थोड़े टाइम के लिए टेम्परेचर डाउन होता है, तब मेल्टिंग होती है, वो भी बहुत कम अमाउंट में मेल्ट होंगी। और वैसे कंडीशन, उसकी वजह से कोई बहुत सारा डिवास्टेटिंग नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है क्लाइमेट के ऊपर या फिर ह्यूमन लाइफ के ऊपर। लेकिन हम जिस मेल्टिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे मास मेल्टिंग है। अनएक्सपेक्टेड टाइम पीरियड में, बहुत कम टाइम पीरियड में बहुत सारे पर्माफ्रॉस्ट का मेल्ट हो जाना एक ही बार में, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, हम उस मेल्टिंग की बात कर। एज टेम्परेचर इन द आर्कटिक रीजन इज increases, permafrost begin to thaw and melt, right? Now melting of permafrost exaggerates effects of climate change in 2 ways. One, by contributing in sea level rise, right? ये आसान सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि परमाफ्रॉस्ट मेल्ट होगा, परमाफ्रॉस्ट के मेल्ट होने की वजह से वो वाटर का डिस्चार्ज आर्कटिक ओशन में, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, उन्हें इन एरियाज में होगा। ठीक, इसकी वजह से सी लेवल राइज होगा। एक बात तो ये होगी। दूसरा क्या नुकसान होता है पर्माफ्रॉस्ट की वजह से, किस तरह क्लाइमेट चेंज हुए बढ़ावा दे रहे हैं मेल्टिंग की वजह से? दूसरा नुकसान ये होता है, पहला मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स रिमेन फ्रोजन एंड डोर्मेंट इन पर्माफ्रॉस्ट, बट if permafrost would begin to melt, they would get reactive, all right? They will begin to consume energy and release various gases, and most of the gases that microscopic organisms release are carbon dioxide and methane. And carbon dioxide and methane are greenhouse gases which are opaque to outgoing terrestrial radiations, which further contribute in increasing temperature of the planet. एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, जैसे जैसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स बढ़ेंगे, उनकी वजह से कई तरह की बीमारियां भी आएंगी, जो जिनके बारे में हम फिलहाल नहीं जानते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में आएंगी। ग्रोथ ऑफ प्रीवियसली डोमिनेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइट गिव वे टू न्यू इन्फेक्शंस एंड वायरसेस। अब से कुछ समय पहले 2021-22 के बीच में भी एक आउटब्रेक हुआ था एक बीमारी का टुंड्रा रीजन में, रेनडियर्स के बीच में। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन अबाउट द नेम ऑफ द डिजीज एंड व्हाट इट वाज अबाउट, मतलब क्या हुआ था उसमें। दूसरी चीज़, जैसे जैसे पर्माफ्रॉस्ट पिघलेगी, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, पर्माफ्रॉस्ट के ऊपर भी एक लेयर होती है, श्रब्स की, लीचेंस की, ग्रास की। सो जैसे जैसे पर्माफ्रॉस्ट पिघलेगी, ये पूरा जो सरफेस है मार्शी हो जाएगा, दलदली हो जाएगा।
उसकी वजह से जितना भी वेजिटेशन है, चाहे ग्रास की फॉर्म में हो या लीचेंस की फॉर्म में, दूसरी चीज़ों की फॉर्म में, श्रब्स की फॉर्म में, वो सब सड़ना स्टार्ट करेगा। जब सड़ना स्टार्ट होगा, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स का भी ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, वो उन्हें कंज्यूम करेंगे, वो और ज़्यादा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से और ज़्यादा GHGs का प्रपोर्शन एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा। दिस इज हाउ permafrost feedback loop works. Now let's talk about ocean heat transport feedback loop. But before understanding ocean heat transport feedback loop, it is an imperative to understand what is Beaufort-Gyre. Now let's carefully look at the map given. आप इसके बीच में देख रहे होंगे Beaufort-Gyre. Beaufort-Gyre क्या है? Beaufort-Gyre is a cold current which moves in clockwise direction and collects fresh water from melting glaciers, icebergs, ice sheets, rainfall, and also any other kind of drainage discharge in and around Arctic region. Okay. Beaufort-Gyre का फ़ायदा क्या होता है? कोल्ड वाटर करंट होने की वजह से ये जो वार्म वाटर करंट पैसिफिक ओशन से आती है, उससे आर्कटिक ओशन तक आर्कटिक रीजन के सेंटर में आने से रोकती है। जैसे कि आप मैप पे भी देख रहे होंगे, रेड एरोज जो दिख रहे हैं वो वार्म ओशनिक करंट से, जो कि पैसिफिक और अटलांटिक ओशन से आ रहे हैं, इन्हें आर्कटिक रीजन की हार्ट में आने से रोकती है। ठीक है, इसकी वजह से एक बैरियर क्रिएट हो जाता है बिटवीन वार्म ओशनिक करंट्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आइस। ठीक, Beaufort-Gyre केवल अपनी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से नहीं, बल्कि इनडायरेक्टली भी बाकी कोल्ड करेंट्स को भी स्ट्रेंथन करके या फिर ऑरिजिनेट करा के ये बैरियर को स्ट्रेंथन करने का काम करती है। जैसे ट्रांसपोलर ड्रिफ्ट को स्ट्रांग बनाना, ये Beaufort-Gyre ऐसी काम करती है। सो इसके ज़रिए एक बैरियर क्रिएट हो जाता है बिटवीन वार्म ओशनिक करेंट्स एंड accumulation ऑफ आइस। इस वजह से आइस प्रोटेक्टेड रहती है। लेकिन ड्यू टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, आइस बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रही है। आइस मेल्टिंग की वजह से Beaufort-Gyre में जो कोल्ड वाटर है उसका प्रोपोर्शन भी बढ़ता जा रहा है, अनयूजुअली बढ़ता जा रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस अनयूजुअल राइज इन प्रपोर्शन ऑफ कोल्ड वाटर इन Beaufort-Gyre has become stronger than ever. It has become much stronger than ever, and its area has also increased. It has expanded, and because of this involvement, its pace has also increased, and because of this increase in pace, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है? पेस की बढ़ने की वजह से जो पैसिफिक और अटलांटिक ओशन से जो वार्म ओशनिक करंट्स हैं वो अब आर्कटिक ओशन में एंटर कर पा रही हैं। Now Beaufort-Gyre is acting as a facilitator for the warm oceanic currents coming from the Pacific Ocean and Atlantic Ocean, जिसकी वजह से ये इंटरमिक्सिंग ओशनिक वाटर की हो रही है, कोल्ड एंड वार्म वाटर की, जिसकी वजह से टेम्परेचर आर्कटिक ओशन का बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू यूजुअल, और जिस वजह से आइस मेल्टिंग और ज़्यादा तेज़ हो रही है। एक चीज़ तो ये हो गई। नेगेटिव इम्पैक्ट एक और है। Beaufort-Gyre की एक और स्पेशलिटी है कि ये यूजुअली तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, बट ऑन एवरी इंटरवल ऑफ 2 to 7 years इट चेंजेस इट डायरेक्शन। इट बिगिंस टू मूव एंटी क्लॉकवाइज ऑन इंटरवल ऑफ एवरी 2 to 7 years, बट फॉर लास्ट 20 to 25 years इट हैज़ नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। इट हैज़ नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन एट ऑल, जिसकी वजह से परेशानी ये है कि यूजुअली जब डायरेक्शन चेंज होती थी तो एक कोल्ड वाटर का एक मास जो था आर्कटिक ओशन से वो अटलांटिक ओशन में रिलीज हो जाता था। बट अब हर रेगुलर इंटरवल पे ये फिनोमेना होने की वजह से प्रोपोर्शन रिलीज होते रहता था, एंड उसकी वजह से जो भी इम्प्लीकेशंस उस
उस कोल्ड वाटर मास के रिलीज उनसे होते थे वो लिमिटेड होते थे, वो वेरिएबल होते थे। बट बीते 20-25 सालों से क्योंकि बिफोर जायड ने अपनी डायरेक्शन चेंज ही नहीं की और वो कोल्ड वाटर का प्रोपोर्शन भी अटलांटिक ओशन में आर्कटिक ओशन में बढ़ गया है, और वो बढ़ा हुआ प्रोपोर्शन, वो बढ़ा हुआ पानी ऑलरेडी वो बिफोर जायर की वजह से वहीं घुमा जा रहा है। अगर ऐसी स्थिति में अगर बिफोर जायर ने अपनी डायरेक्शन आने वाले कुछ समय में चेंज की तो बहुत बड़ा ठंडे पानी का मास, वेरी जाइगेंटिक चंक ऑफ कोल्ड वाटर would be released into the Atlantic Ocean, and that और उसका अमाउंट भी बहुत ज़्यादा अनबेरेबल होगा, and the volume and the amount of that water would be unimaginable, और इसकी वजह से बहुत डिवास्टेटिंग implications हो सकते हैं on climate, on agriculture and human life in general in Atlantic region across North America as well as Europe. प्रेसिपिटेशन पर असर पड़ेगा, उसकी वजह से एग्रीकल्चर पर असर पड़ेगा, एनर्जी नीड्स बढ़ेंगी और कई सारी दूसरी समस्याएं आ सकती हैं। बिफोर जायर के बारे में जो भी बातें मुझे बताई थी वो मैंने आपको समझा दी हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके ये पीपीटी देख सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। अब तक आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या नुकसान है आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के। नाउ फिर भी हम एक बार इनकैप्सुलेट कर लेते हैं। सो नाउ टेम्परेचर, सबसे पहला तो कॉन्सिक्वेंस ये है कि आर्कटिक एरिया में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ड्रामेटिकली। ठीक है, बिटवीन 1980 टू 2020 द पेस ऑफ राइज इन सरफेस टेम्परेचर इन द रीजन was found to be more than the rest of the world. It is important to note that the autumn of 2020 was recorded to be the warmest ever for the Arctic region since 1900. Plus, as you can see in this map on right hand side, the yellow line represents the usual minimum extent of ice in a season. But जो अब नया मिनिमम एक्सटेंट है, जो कि करंट मिनिमम एक्सटेंट है इसका, वो बहुत ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू यूजुअल मिनिमम एक्सटेंट ऑफ आइस, एंड दिस इज लाइफ थ्रेटनिंग। दिस माइट पॉज एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू मेनी पीपल अक्रॉस द ग्लोब, क्योंकि अब इसकी वजह से सी लेवल राइज बहुत तेज़ी से होगा और हो भी रहा है। इसके बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट में भी बात करेंगे। Greenland ice sheet, the second largest reserve of ice after Antarctica, is diminishing rapidly. Between 15 and 17 July, only within 3 days, 18 billion tons of ice was lost. Imagine, 18 billion tons of ice was lost within 3 days. Melting of Greenland ice sheet has already begun to lead to phenomenal rise in sea level in Atlantic Ocean. Alone in 2019, the Atlantic Ocean recorded 1.5 meters of rise in sea level, which is too much. जिसकी वजह से लो लाइंग एरियाज में रह रहे लोगों को, कोस्टल एरियाज में रह रहे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाले। कई सिटीज़ जो हैं जो कोस्टल एरियाज में लोकेटेड हैं, कई गांव हैं, वो सब कुछ सबमर्ज हो जाएंगे, वेजिटेशन सबमर्ज हो जाएगा, और ये सब existential threat है for the whole of the humanity, just not for humanity but also for other kind of fauna and other different flora fauna सभी के लिए खतरा मिला के। थर्ड पॉइंट को समझने के लिए हमें जेट स्ट्रीम के बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफ में जान लेते हैं। जेट स्ट्रीम्स क्या होते हैं? जेट स्ट्रीम्स आर अपर एयर सर्कुलेशन इन पोलर एरियाज। हालांकि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स भी होती हैं, बट हम यहाँ पे आर्कटिक की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे पोलर एरियाज की बात करेंगे। पोलर जेट स्ट्रीम्स ये आपको पोलर एरियाज में मिलेंगी। आर्कटिक में आपको अपर से एयर सर्कुलेशन है, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है। जितना ज़्यादा आर्कटिक ठंडा होता है उतनी ज़्यादा जेट स्ट्रीम्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। जेट स्ट्रीम्स का फ़ायदा ये होता है कि जेट स्ट्रीम्स की वजह से दो चीज़ें होती हैं। पहला, कोल्ड एयर मास जो आर्कटिक रीजन में है, पोलर वर्टेक्स की फॉर्म में हो या इन जनरल भी हो, वो एक ही जगह पे कंसोलिडेटेड रहता है, वो वहाँ से बाहर नहीं जाता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड, आर्कटिक जैसी ठंड
हमें यूके में देखने को नहीं मिलेगी, या फिर यूरोप के किसी और हिस्से में देखने के लिए नहीं मिलेगी, या अमेरिका में नहीं देखने को मिलेगी, जो कि आर्कटिक रीजन में होती है। दूसरी चीज़, जेट स्ट्रीम जेट स्ट्रीम क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट मूव करती रहती हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पीड में मूव करती हैं, तो इसकी वजह से जो भी स्टॉर्म्स आपको अटलांटिक ओशन में देखने को मिलते हैं, स्टॉर्म्स हो, साइक्लोन्स हो, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, रुकते नहीं किसी एक जगह पे बहुत ज़्यादा देर के लिए। लेकिन अगर टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन आर्कटिक रीजन एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वुड डिक्लाइन, then jet streams would become weaker. And with the weakening of the jet streams, what will happen? क्या होगा उससे ये होगा दैट सबसे पहले जो कोल्ड एयर मास है उसका एरिया बढ़ जाएगा, वो केवल आर्कटिक तक लिमिटेड ना रह के वो पूरा नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, यूरेशिया पूरा कवर कर लेंगे, जहाँ लोग रहते हैं, ह्यूमन इनहैबिटेशन वाले एरियाज में कोल्ड एयर मास पहुँच जाएगा। एंड वो जो ठंड होगी that would be highly unbearable, that would be life threatening for people. One thing. Second thing, जैसे मैंने भी बताया था, जेट स्ट्रीम की वजह से साइक्लोन स्टॉर्म चलते रहते हैं, रुक नहीं पाते जगह पे बहुत देर के लिए। लेकिन अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा, जेट स्ट्रीम्स वीक होंगी, उसकी वजह से और जो भी साइक्लोन्स स्टॉर्म्स हैं वो एक जगह पे बहुत देर के लिए रुकेंगे और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे। They will cause great damage to human life and property. और साथ में काफ़ी लंबे टाइम के लिए हमें ड्रॉट्स मिड लैटिट्यूड्स में भी इसकी वजह से देखने को मिलेंगे। फोर्थ थिंग, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल, बायोडाइवर्सिटी के लिए कैसे थ्रेट है? थ्रेट काफ़ी फॉर्म्स में है, लेकिन अगर हम उतना डिटेल में लेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो आपको पता होगा कि टुंड्रा रीजन में लीचेंस पाए जाते हैं, जहाँ ठंड वहाँ लीचेंस। ठीक, लीचेंस, रेनडियर्स लीचेंस ही खा के जिंदा रहते हैं, उनका वो आहार है। बट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है लीचेंस की अवेलेबिलिटी भी घटते जाती है। लीचेंस की अवेलेबिलिटी घटेगी तो रेनडियर्स के पॉपुलेशन पे भी असर पड़ेगा। सो these were the consequences of the Arctic amplification. कॉन्सिक्वेंसेज और भी हो सकते हैं, इंडियन मानसून पर भी काफ़ी नेगेटिव इम्प्लीकेशंस हैं, उसके बारे में हम किसी और दिन कभी डिटेल में बात करेंगे। सो दिस वॉज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।